الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن هذه أمتكم أمة واحدة صدق اللہ العظیم. میں بھی آپ حضرات کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے سے ہوں. بہت ہی خوبصورت رنگا رنگی پروگرام چل رہا تھا. پھر بعد میں مولانا خورشید صاحب کی زوردار تقریر ہوئی, اس کو بھی آپ حضرات نے سنا, میں نے سنا. یہ ہمارے اور آپ کی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج یہ محفل, یہ پروگرام, یہ سجا ہوا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے غور سے اس کو سنیں اور جو عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں بھائی آصف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس بندہ ناچیز کو دعوت دی اور یہاں اسٹیج پر لا کر کے کھڑا کیا, ورنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں یہاں آ کر کے کھڑا ہوتا. اور پھر دیگر حضرات نے, شاعر صاحب نے, کوثر نظامی صاحب نے اعلان کیا کہ 2021 میں یہ اسکول قائم ہوا. ایسا لگ رہا ہے کہ 1921 میں یہ اسکول قائم ہوا تھا. تو کتنے سال پیچھے لے کر کے گئے؟ کتنے سال بھائی آپ لوگوں سے بولا, کتنے سال پیچھے لے کر کے گئے؟ 100 سال. جو ہوا سو میں آپ حضرات سے ایک وعدہ کرانا چاہتا ہوں کہ آگے جب 2025 آئے تو مجھے ایسا محسوس ہونا چاہیے, ہم لوگوں کو ایسا لگنا چاہیے کہ یہ 1921 نہیں بلکہ 1821 یہ اسکول چل رہا ہے. لگے گا دم نہیں ہے, اچھا نہیں لگ رہا سننے میں, شاید آواز خراب ہے, کئی دن سے پروگرام میں. تو انشاءاللہ دیں گے آپ حضرات ساتھ؟ بھائی بولیے تو ہاں یا نہ تو بولیے. کیسے ساتھ دیں گے؟ اپنے بچوں کو یہاں تک بھیجیں گے. ابھی آصف سر نے بتلایا کہ یہاں 250 بچے ہیں, تو اگلے سال 500 بچے ہو جانا چاہیے. ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. انگلش میڈیم اسکول یہاں موجود ہے, ورنہ ہمارا گھر ارریا میں ہے, وہاں چل کے دیکھیے کیا ماحول ہے. لوگ بوری میں پیسہ بھر کر کے لاتے ہیں, اپنے بچوں کو یہاں سے چھوڑنے کے لیے 70-80 100 کلومیٹر دور سفر کرتے ہیں. جب جاتے ہیں تو ایک دن جانے میں لگتا ہے, ایک دن آنے میں لگتا ہے, اور اپنی گاڑی کمائی کا بے شمار پیسے انگلش میڈیم کو دے کر کے آتے. لیکن آصف سر نے ہمارے اور آپ کے اوپر بڑا احسان کیا کہ ایک صفا پبلک نامی اسکول کو یہاں قائم کر کے بالکل بہت کم فیس میں ہمارے لیے آسانیاں کر دی کہ کوئی غریب آدمی ہو, کسان آدمی ہو, 500-600 روپے دن کا کمانے والا ہو, وہ بھی اپنا بچہ آسانی سے یہاں پڑھا سکتا ہے نا. بھائی جن کے والد صاحب 20-25 ہزار روپے مہینہ کما لیتے ہیں, ان کا بچہ بھی یہاں آسانی سے پڑھ لیتا ہے. آپ حضرات چندہ دیتے ہیں یہاں پر؟ نہیں دیتے ہیں نا. دیکھیے چندہ کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. اگرچہ یہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں, یہاں فطرہ عشرہ نہیں دے سکتے ہیں, لیکن ایک صدقہ نافلہ ہے. کیا ہے؟ ایک صدقہ نافلہ ہے جو خوشی سے صدقہ کیا جا سکتا ہے. صدقہ نافلہ یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے ماں کو دینا چاہے اس کو دے سکتا ہے, باپ کو دینا چاہے باپ کو دے سکتا ہے, بھائی کو دینا چاہے بھائی کو دے سکتا ہے. جب صدقہ نافلہ اپنے ماں باپ بھائی
किसी स्कूल के लिए देना तो उसके लिए बहुत आला काम है। सामीईन, हमारे यहाँ ये माहौल है जो मदरसे में लोग ढेर सारा ताउन कर देते हैं, चंदा देते हैं, उशरा देते हैं, मनसेरा देते हैं, सब चीज देते हैं, लेकिन स्कूल उसके तरफ चंदा का रुझान ही नहीं जाता है। आप यहाँ से चल करके वहां घुसकी जाइए, कौन कौन से स्कूल है, सब स्कूल वाले चंदा करते हैं, करते नहीं करते मारा हिलाल पब्लिक हो, कौन कौन से स्कूल हो, चंदा का जब मौसम आता सब करते हैं। लेकिन बताइए कभी रसीद लेके के सफा पब्लिक वाले आपके पास पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे हैं ना। कभी आपसे सदका मांगा, ज़कात मांगा? नहीं मांगा। लेकिन ये बताइए कि जो बच्चा माँ से दूध नहीं मांगे तो क्या माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी? पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? तो मेरी माँ और बहनों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप ज़कात, फितरा, उशरा मदरसे को दीजिए, लेकिन कभी कभार सदकाए नाफिला इस स्कूल तक मिला करके पहुँचाइए। ये नहीं कि हमारे दरवाजे पर भीख की कटोरी लेकर के स्कूल वाले आएंगे तब हम चंदा देंगे, नहीं, इस बात का मोहताज नहीं, बल्कि आप खुद स्कूल के अंदर आइए। जैसे कभी आपने माजिद भाई को देखा कि तमाम बच्चों के लिए इनाम की जिम्मेदारी ले ली। अब स्कूल में आए हुए हैं, देख रहे ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ब्लैक बोर्ड खरीद करके दे दिया। स्कूल में देख रहे किसी चीज की कमी है, उस चीज को कमी को पूरा कर दिए। और खुदारा एक वक्त याद रखिए कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है। अभी तो हम कुदारी अपने हाथों से चलाते हैं, धान हाथों से काटते हैं, गेहूं कचिया से काटते हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है, बल्कि आ गया, हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं कि धान मशीन काटता है, गेहूं मशीन काटता है, मक्के की तैयारी मशीन करता है, सब चीजें टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। एक वक्त आएगा कि इंसान जो अनपढ़ हो वो किसी चीज के काबिल नहीं रहेगा, वो उसकी फूटी कोड़ी उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो उस जमाने के आने से पहले और आपको तैयार होना पड़ेगा। वो तैयार कैसे होंगे? हमारे कौम को, समाज को वकील की जरूरत है, हमारे कौम को और समाज को पायलट की जरूरत है, हमारे कौम को और समाज को इंजीनियर की जरूरत है, हमारे कौम को MBBS डॉक्टर की जरूरत है। अरे ये सब कहां से पैदा होंगे? मदरसे पैदा होंगे भाई, मदरसे में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है क्या? पैदा होंगे मदरसे में? नहीं, ये स्कूल में ही आकर के पैदा होंगे। और फिर बड़ी खुशी की बात, इस पूरे इलाके के अंदर एक ये वाहिद स्कूल है, ये अकेला स्कूल है जो इस्लामिक स्कूल है। यहाँ से बुढ़ा चले जाइए, वहां मिल जाएगा आपको, यहाँ से फूल चौक तक, यहाँ से लेके बसमतिया तक, दूर दराज तक, सिसवा को छोड़ करके इस बीच में कोई स्कूल नहीं है। कोई ऐसा स्कूल है कि जिस स्कूल के अंदर दीनी तालीम भी होता हो, कुरान करीम की भी तालीम होता हो, साइंस भी होता हो, टेक्नोलॉजी भी होता हो, ये तमाम चीजें होती हो। अगर ये सब चीजें, ये तमाम सिफतें अगर मौजूद है इस स्कूल के अंदर, तो ये वाहिद स्कूल है कि सब चीजें यहाँ मौजूद है कि नहीं है? अभी चंद दिन पहले मुफ्ती अकरम साहब कुरान पढ़ाते थे, अभी फिर दूसरे उस्ताद आए हैं, तीसरे उस्ताद आए, बल्कि अब तो डायरेक्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि अगले साल कुरान की पढ़ाई तो होगी, मुस्तकिल हिफ्ज़ की भी पढ़ाई होगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक जगह हमें रह करके कुरान जैसी नियामत भी मिले और दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी की तमाम चीजें मिले। मेरी माँ और बहनों, आज इस पूरे इलाके सोनियाही के अंदर जज तलाश कर लीजिए। जज है कहीं? जज है मोहतरम? जज है? नहीं है। इंजीनियर कितने हैं? 0/0। वकील कितने हैं? कुछ भी नहीं। तो अगर यही निजाम चलता रहेगा तो वकील कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, जज कहां से आएंगे? अभी डायरेक्टर साहब ने प्रोग्राम पेश किया था, कोई लीडर था, कोई डॉक्टर था, कोई सबसे पहले पायलट बनने वाली, जहाज चलाने वाली लड़की थी। ये सब जो दिखलाया था, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं था, हमें और आपके लिए भी नसीहत था, हमारे लिए भी नसीहत था कि हमारा भी ये छोटा सा बच्चा आगे चल के पायलट बनेगा, हमारा भी ये छोटा सा बच्चा
बच्चा जज बनेगा, हमारा भी ये छोटा सा नन्हा मुन्ना मासूम बच्चा इंजीनियर बनेगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। छोटे छोटे बच्चों को देखा था, हमारी कौम का बच्चा, हमारे स्कूल का बच्चा हवाओं का रुख बदल देगा। आज ये नौजवान बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आपके सामने बातें कर रहे थे, इंशाअल्लाह ज्यादा दिन नहीं गुजरेगा कि आज सोनियाही में देखेंगे कि कहीं डॉक्टर है, कहीं पायलट है, कहीं ग्रेजुएट है, कहीं बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी है, साइंसदा है। ये तमाम चीजें सोनियाही के अंदर मौजूद रहेगी। तो इसमें इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों का साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। कैसे? खाली जुबान से? बड़े बड़े लोग हैं, मालदार लोग हैं, कोई एक रूम नहीं बनवा सकते हैं आकर के स्कूल में। हमारी कौम का अगर एक बच्चा जज बन गया और उसकी पहुंच आगे तक पहुंच गई तो इंशाअल्लाह पूरे इलाके का माहौल बदल देगा, आसानियां पैदा हो जाएगी। लेकिन कब होगा? जब हम इनकी मदद करेंगे। तो कैसे मदद करेंगे? जुबान से ही खाली नहीं, दुआ की भी जरूरत होती है, दवा की भी जरूरत होती है, मेहनत की भी जरूरत होती है, तमाम चीजों की जरूरत होती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मदरसे वाले चंदा करने के लिए जाते हैं तो आप चंदा देते हैं, लेकिन स्कूल वाले आपके पास नहीं पहुंचते हैं तो कभी आप क्यों नहीं खुशी खुशी स्कूल आते हैं और कहते हैं कि बाबू आसिफ साहब, आपके स्कूल में किस चीज की जरूरत है? आपके स्कूल में क्या बेंच की जरूरत है, ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, रूम की जरूरत है, किस चीज की कमी है? बताइए। आज मैं जेब खास से उसकी मदद करूंगा, मैं चंदा का पैसा नहीं दूंगा, मैं ज़कात नहीं दूंगा, फितरा नहीं दूंगा, इन सब चीजों को तो मैंने मदरसे में दे ही दिया। अब सदका नाफिला जो है वो मैं आपको अता करूंगा। तो इंशाअल्लाह देंगे सब आदमी? देंगे? बोलिए आवाज नहीं देंगे? देंगे इंशाअल्लाह, जरूर देंगे। आप बिल्कुल तो थोड़ी देर के लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग सर से टोपी हटा दें, कुर्ता पैजामा पर चले आए तो बताइए हम लोग किस हैसियत के लोग होंगे? कुछ होगी हैसियत? कुछ नहीं हो जाएगी। इज्जत अपनी अलग जगह पर है, लेकिन हमारे अंदर एक फन होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, हमारे अंदर कुछ जज्बात होना चाहिए, ख्वाहिशात होना चाहिए, जिसके जरिए से हम आसमानों पर उड़ सके, हम नई नई चीजें ईजाद कर सके। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा झंडा चलता है ना? देखे तिरंगा झंडा पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं? उसको किसने बनाया था? एक मुस्लिम लड़की ने बनाया था, जिसका नाम सुरैया तैयब है। क्या नाम है उसका? सुरैया तैयब। तो जब इतनी बड़ी पहुंची भी थी तब ने एक झंडे को रंग दिया। तो हमारी ये माँ और बहनें, जितने मासूम बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, सब चल करके इंशाअल्लाह आला से आला खिदमत अंजाम देगी। और इसी तरह मुसलमानों में हिंदुस्तान में एक शख्स गुजरे हैं, डॉक्टर अबुल कलाम, APJ अबुल कलाम। जानते हैं? नहीं जानते? जिसने एटम बम बनाया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंसदान है। अगर अबुल कलाम, APJ अबुल कलाम अपनी सोच को छोटी ही रखता, घर के घर में रहता, किसी स्कूल मदरसा कॉलेज में नहीं जाता, तो इतना बड़ा साइंसदान नहीं बनता। तो इंशाअल्लाह आप लोग भी साइंसदान बनेंगे। APJ अबुल कलाम ने तो एटम बम बनाया, आप लोग क्या बनाएंगे? चूल्हा। क्या बनाएंगे? चूल्हा। ये सब छोटी चीजें, बड़ी बड़ी सोच रखेंगे, बड़ी सोच रखेंगे। तो मेरी माँ और बहनों, नौजवान दोस्तों और साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, दरखास्त करता हूं कि अपने बच्चों को विदेश ले जाने की फिक्र मत कीजिए। विदेश के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अभी आसिफ भाई ने बताया कि 3 साल पहले विदेश भी खुशहाल था, लोग अच्छे खासे पैसे कमाते थे, लेकिन विदेश का हाल भी दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहा है। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं,
तो किसी काम के लिए नहीं रहेंगे। और मैं इन नौजवानों से भी कहता हूँ कि हमारी माँ और बहनों को और छोटी छोटी बच्चियों को खेत में मत भेजिए घास काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए। हम लोग तो अकीदा बना रखे हैं कि हमारी बच्चियां धान काटेगी, गेहूं काटेगी, घास काट के लाएगी, वो गाय को खिलाएगी, दूध देगी, नहीं तो हम भूखे रहेंगे। खुदारा ऐसा मत कीजिए। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह ताला ने रिज़्क की जिम्मेदारी तो खुद ले ली है। ये हमारी माँ और बहनें, हमारे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां खेत नहीं जाएगी तो भी अल्लाह तबारक व तआला इससे उतना ही खाना खिलाएगा जितना कि हम अभी खा रहे हैं। कमाने के लिए हमारे ये नौजवान काफी है। हमारे ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे खेत में बिल्कुल न जाए, पढ़ाई पर ध्यान दें। आपका जो वक्त बच जाए तो घर में भी मुताला करें, पिछला याद करें, कुछ सोचे समझे, तब चल करके इंशाअल्लाह आगे चल करके हम